So what we are supposed to do is to start with alternative fuels and energy sources. Okay? Petrol was discussed as the main fuel. So by alternative fuels and energy sources means that we are not going to discuss petrol. Apart from petrol, we are going to discuss every commonly used fuel in energy sources. Okay? There are a couple of sources which are not that common, slightly uncommon for a few countries, but the world today is turning over to them for their requirements. So if they're not common right now, or if they're uncommon right now, they're supposed to be quite common in the coming years, or at least in the coming decade. We're expecting it to be quite common all around the world from 2020 to 2030. See? Starting with alternative transport fuels, the growing interest in a great deal of development work taking place in alternative transport fuels in order to reduce dependence on fossil fuels and find greener forms of transport is possible. Greener means the forms of transport fuel that come with less pollution. Pollution is something that we studied with the different types: air pollution, soil or land pollution, water pollution, back in chapter number 9. Okay, we're going to discuss pollution again in chapter number 1. Okay. Starting off with diesel. Now, as I discussed it earlier last week, that diesel is a form of fuel that is usually used for higher engines, for engines having a bigger capacity, starting from 2025 cc cubic centimeter, going all the way to 4,000, 4,500, or 5,000 cubic centimeter, or even more. So for cars like that, for highly developed engines such as lorry engines, truck engines, we use diesel. So high-speed diesel engines, diesel is of two types: low-speed diesel engines and high-speed diesel engines, in which low-speed diesel engines and low-speed diesel slowly became obsolete because that was almost of no use. Okay, so we're only going to discuss high-speed diesel engines. High-speed diesel engines in cars, buses, trucks use a fuel which is commonly known as DERV, diesel engine road vehicle. Okay? That contains hydrocarbon molecules consisting between C6 to C20 carbon atoms. Okay? Slower speed diesel engines are used for ships, which use a slightly heavier fuel, which means slow speed diesel engines is not obsolete for ships, but that is obsolete for cars, buses, or trucks. Okay? Now, uh, up till this line, it's only the introduction. The coming lines are going to discuss the working of diesel engines as well as some disadvantages and advantages of diesel engines. So I want you to stay ready and keep a pen or a pencil in your hand, and you're going to mark a few things. Now, diesel engines are compression ignition engines. Let me clarify, this is some point that we have previously studied on our Friday's topic. Let me go towards that. Now, we studied that the ignition temperature of petrol or air mixture is around 550 degrees centigrade. Almost the same temperature is quoted for diesel engines. By that, I mean that we do not use any flame, we do not use any fire or sparking sources. ठीक है, याद रखिएगा जो बाइक का और कार का इंजन होता है वो हमारे पास जब तक पेट्रोल पे वर्क कर रहा होता है उसमें एक स्पार्क का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो यूजुअली बैटरी ऑफ कार या बैटरी ऑफ बाइक जो होते हैं वो अरेंज कर रहे होते हैं. एक छोटा सा स्पार्क होता है, वो वैसे ही स्पार्क होता है बिल्कुल जैसा हमारे पास गैस लाइटर्स में होता है, ठीक है, या हमारे पास ओवंस में होता है. तो वो स्पार्क जो होता है वो यूजुअली एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है. बट अगर वो स्पार्क प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, तो उस केस में हमारे पास जो टेम्परेचर कोट किया जाता है जिस पर पहुंचते ही ऑटोमेटिकली ये पेट्रोल एयर मिक्सचर जो है ना वो इग्नाइट हो जाता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. That ignition temperature for petrol air mixture is 550 degrees centigrade. That for diesel air mixture is also around 550 degrees centigrade. Slight difference है, कोई बहुत बड़ा difference नहीं है, hardly 10 degrees difference. ठीक है. So without a spark, ये spontaneously fuel करेगा. Diesel engines में ignition engines के अलावा ये compression based ignition होती है. क्या होता है कि आपके पास fuel और air mixture को compress करता है, ठीक है, हमारा कंप्रेसर सिस्टम इंजन में, और कंप्रेस करने से चूंकि यूजुअली हीट अप हो जाती है गैसेस कंप्रेस होने से, तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाए और वो इग्नाइट कर जाए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेम और स्पार्क.
ठीक है, hence compression ignition engines. It was all about working. Let's come to advantages and disadvantages. The first advantage, diesel engines are much more efficient than petrol engines. First advantage, note it down. Second, it produced much less carbon monoxide, which is, don't forget, as a part of revision, was a poisonous gas. This is the second advantage. Coming to the disadvantages, the first disadvantage is working temperature is very high. याद रखिए कि जिस इंजन में वर्किंग टेम्परेचर हाई होगा वो इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा और फिर उस इंजन को कूल डाउन भी करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि विंटर बेस्ड टाइम ड्यूरेशन में या कोल्डर कंट्रीज में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉटर कंट्रीज में इंजन ओवरहीट भी हो सकते हैं. ठीक है, probably in UK, Canada or America this won't be a problem, or any other colder countries for that matter, but पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर आप 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने इंजन को लगा ले जा रहे हैं तो उस इंजन को ओवरहीट होना बहुत आसान है. ये इस इंजन को कूल डाउन करने के लिए आपको फिर कॉस्ट पुट अप करनी पड़ेगी, which is quite a problem for the car manufacturers. ठीक है ना? First disadvantage. Second, they produce more oxides of nitrogen, hence a pollution source. Second disadvantage. Third disadvantage, smoke. Fourth disadvantage, the particle it contains. The particle that it contains are commonly known as soot, S-O-O-T. Let me annotate that for you. That is, the particles that it contain are known as either soot or particulates. We call them both by these names. We can call it soot, we can call it particulates. Soot is the word that we used back in chapter number 10 when we were discussing incomplete combustion. However, particulates is a new word for you, which means the same thing. I hope you're familiar with the particulates or soots. हम commonly जब अपने barbecue के लिए कोल को burn कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे black particles जो है वो sometimes air में release कर रहा होता है, हम उसे particles, particulates, soot कुछ भी बुला सकते हैं. And a specific odor. Odor was a big problem, it still is a big problem for diesel engines. Diesel engines की smell ज़्यादा होती है petrol engines से. Any questions you'd like to ask before I move on to the next topic, gasoline from methanol? सर वो जैसे कि सर ट्रैक्टर होते हैं सर उसमें से डीजल लगता है, लेकिन सर वो ज्यादा वजनी चीजों को खींच लेते हैं लेकिन उनकी स्पीड इतनी नहीं होती, वो क्या होता है? बेटे जितना ज्यादा बर्डन होगा उतनी स्पीड रिड्यूस होगी. ये तो आपके साथ भी होगा, आपको मैं हल्की चीज दे दूं तो आप तेज चलेंगे और आपको मैं भारी चीज दे दूं तो आप ऑफ कोर्स स्लो हो जाएंगे. नो सर, वैसे से अगर mass. पीछे कोई हो, कोई सामान लोड भी ना हुआ हो लेकिन अकेला हो, मतलब फिर भी वो इसकी स्पीड कार से तो थोड़ी होती है. अच्छा, इस अंदाज में बात करें, अगर बेटा इस अंदाज में बात करें तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है. इसका आंसर डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन पे. इंजन को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी लोएस्ट और हाईएस्ट स्पीड लिमिट्स रखी जाती हैं. ठीक है, ट्रैक्टर्स अगर इन्होंने कोई बर्डन ना भी पिक किया हो फिर भी वो क्यों स्लो चल रहे होते हैं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड दैट्स हाउ द इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड. उनका इंजन्स बनाए ऐसे जाते हैं कि वो उस स्पीड को ना जा सकें. ठीक है, अब ये क्यों बनाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज अ सेफ्टी पॉइंट. ठीक है, अगर आप उसके अंदर हाई स्पीड की ऑप्शन रखेंगे ही नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेफ्टी है, क्योंकि अगर आपने उसके अंदर कभी तो वो खाली होता है लेकिन कभी उसने बर्डन पे पिक किया होता है. बर्डन पे अगर आप उसे हाई स्पीड पर ले जाने की कोशिश करेंगे तो इंजन ऑफ कोर्स इतने बर्डन के साथ हाई स्पीड पर नहीं जा सकता, इंजन फेलियर चांसेस है. और नंबर वन. नंबर टू, अगर इंजन किसी तरह जोर लगा के हाई स्पीड की तरफ जाएगा तो वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, विच इज नॉट सेफ. तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेफ्टी. सेकंड पॉइंट ये भी होता है कि इंजन फेलियर को भी रिड्यूस करने के लिए है. ठीक है, फिर डिजाइनिंग ऑफ इंजन में आपके पास सारी ऑप्शंस हों ये जरूरी नहीं है. ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से जिस तरह ह्यूमंस डिजाइन होते हैं. देखिए, आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसी परफॉर्मेंस दे सकें, एक जैसी लाइकनेस भी रखते हों और एक जैसी मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी भी रखते हो, ये जरूरी नहीं. ठीक है, जितनी आसानी से आपको बायो याद होती है जरूरी नहीं है उतनी आसानी से आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स भी याद होती हो.
इसी तरह इंजन वर्क करते हैं। इंजन को आप सारी की सारी ऑप्शंस नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे 1 किलोमीटर पर आवर से लेकर जो है ना कहते हैं 500 किलोमीटर पर आवर तक की सारी स्पीड ऑप्शंस दे सकते हैं। नहीं, इंजन ऐसे डिजाइन नहीं होते। इंजन की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि जो डिफरेंस होगा, जो डेल्टा चेंज होगी, ठीक है, वो आपके पास 50 किलोमीटर तक रहेगी। मतलब हम उसे मिनिमम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसे लेकर 60 तक जा रहे हैं, या 100 तक जा रहे हैं, 150 तक जा रहे हैं। There is a limit on how we design, and that उस goes for safety as well as the as well as to avoid the design failures. जी उससे अगर हम पेट्रोल कार को अगर हम डीजल भी ले आए तो उसका उससे क्या होगा काज में? बेटा, याद रखिएगा कि पेट्रोल और डीजल के इंजन में बहुत फर्क है। पेट्रोल स्पार्क इग्निशन इंजन है, डीजल कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। इन दोनों की डिजाइनिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। और हाँ, अगर हम इंजन चेंज करें तो हम इतने सीसी वाली ही कार को ला सकते हैं, लेकिन अगर छोटी कार्स को, छोटे इंजन को अगर हम डीजल पे लाने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी अच्छी एफिशिएंसी शो नहीं करेंगे और पोल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, which again is not in the benefit of either the humans using it or the planet as well. ओके सर। ठीक है ना। मतलब हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं और मैंने वो फैक्टर्स स्लोली डिफरेंट क्वेश्चंस में और वैसे भी आपके सामने कैलकुलेट किए हैं। आप इंजन डिजाइन को देख रहे हैं, डिजाइन फेलियर को अवॉइड कर रहे हैं, आप सेफ्टी को नोटिस कर रहे हैं, आप प्लान पोल्यूशन के पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर आल्सो टेकिंग अंडर कंसिडरेशन द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ठीक है। नॉट टू फॉरगेट और टू मेंशन इंजन लाइफ. So there are many factors that we keep under view while designing an engine. ठीक हो गया? Any other यस सर। questions before I move on? नो सर। All right. Gasoline from methanol. They're going to quote an example for that. Let me tell you, there have been no questions from this part in variant 2 in last 10 years. ठीक है? Variant 3 में या 1 में मैंने really once every 5 years के हिसाब से question देखा हुआ, इससे ज़्यादा नहीं. So it's a very rare chance के इससे question आए. New Zealand has large reserves of natural gas, mainly methane, but very little petroleum. The problem of producing petrol has been transformed by a catalyst known as zeolite ZSM5, which is actually a mixture of catalysts. A zeolite is one of the large group of aluminosilicates of sodium, potassium, calcium, and barium. So इसमें बहुत सारे एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। सिलिकेट्स वो होते हैं जिनके फॉर्मूला में SI आता है ऑक्सीजन के साथ, और एल्यूमिनोज वो होते हैं जिनके फॉर्मूला में एल्यूमिनियम आता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन उनके प्रीवियस मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम शामिल हैं, which means a lot of compounds and a mixture of lot of catalysts into one catalyst by the name ZSM5. ठीक है। Methane is first converted into methanol. The methanol produced is then turned into hydrocarbon using ZSM5 catalyst. So yes, it is possible कि हम gas को liquid fuel में convert करें by a two-step process shown over here, as methanol can be converted into hydrocarbons by taking water out. ठीक है। उन्होंने बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को n यूज किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग एट एन इक्वेशन जिसे हमने n से बैलेंस किया हुआ है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी किया जा सकता है, और आगे चल के पॉलिमराइजेशन में हम इस चीज को कि n हम क्यों लिखते हैं और ऐसे इक्वेशंस क्यों बैलेंस करते हैं, इसे डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. ZSM5 एक आर्टिफिशियल जियोलाइट है. ये कंपोज करता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन. ये मैं पहले बता चुका हूँ. इट वाज फर्स्ट मेड बाय टू केमिस्ट वर्किंग फॉर यूएस मोबिल ऑयल कंपनी. ठीक है. मोबिल ऑयल कंपनी एक्चुअली इज अ कंपनी नेम. हम मोबिल ऑयल समझते हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के लिए एक वर्ड है. एक्चुअली लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टिंग कंपनीज में से थी, इसलिए हमने इसे मोबिल ऑयल या मोबिल इंजन ऑयल के नाम से जानना शुरू कर दिया. एक्चुअली इट्स अ कंपनी नेम. ठीक है. Moving on, LPG and CNG, आप इन दोनों वर्ड से फेमिलियर होते हैं. LPG is liquefied petroleum gas या ऑटो गैस. ये कंपोज करती है प्रोपेन और ब्यूटेन. प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर को LPG कहा जाता है. CNG however compressed natural gas है, ये 90% मीथेन होती है. ये प्रोडक्ट्स एक सिग्निफिकेंट मार्केट रखते हैं इन कंट्रीज में. फॉर एग्जांपल जितनी टैक्सीज हैं जापान में वो LPG यूज करती हैं. इंडिया में मोटराइज्ड रिक्शास जो होते हैं मेजर सिटीज में वो CNG में रन कर रहे हैं. ठीक है.
सीएनजी या एलपीजी हमारे घरों में या शहरों में कॉमन है। गाड़ियों में सीएनजी बड़े अरसे तक कॉमन रही है। पाकिस्तान ने इसे बड़ा प्रमोट किया है, लेकिन उसके बाद अपने गैस प्रॉब्लम को लेकर फिर पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, नॉट दैट वी आर वेरी शॉर्ट ऑन रिजर्वॉयर्स, एक्चुअली हम उसे सही तरह से एडमिनिस्टर या मैनेज नहीं कर सकते। गैस रिजर्वॉयर्स पाकिस्तान के पास कम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सीएनजी एक तरह का जिन्हें एक डाउन साइड की तरफ आ चुका हुआ है। और एलपीजी बहुत कॉमन है अभी भी, और जितने हमारे पास सिलेंडर्स यूज होते हैं घरों में जहाँ पर गैस सप्लाई नहीं एग्जिस्ट करती, वहां पर हम एलपीजी सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर द स्टार्टिंग फोर अल्केन्स वर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और उसमें से मीथेन 90% हम सीएनजी के अंदर, और प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर को एलपीजी कह रहे हैं, ठीक। एनी सर ये क्वेश्चन फ्रॉम? हाँ जी जी। नेचुरल गैस और एलपीजी में क्या फर्क है? नेचुरल गैस इज मीथेन, एलपीजी इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है ना। बस तो यही फर्क है? हाँ बेटा, ये छोटा फर्क है। एक का अल्केन और है, दूसरे का अल्केन और है। एलपीजी के जो अल्केन्स हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन हैं, जबकि सीएनजी या नेचुरल गैस का जो अल्केन है, मेजर अल्केन, वो मीथेन है। मतलब सर जो घरों में जो गैस आती है वो सीएनजी है? नहीं बेटा, घरों में जो गैस आती है वो नेचुरल गैस है, क्योंकि हमने उसे कंप्रेस नहीं किया होता। सीएनजी कंप्रेस्ड फॉर्म है नेचुरल गैस की, और वो कार्स में यूज होती है, घरों में गैस नहीं यूज होती। घरों में आपको सप्लाई से आती है, सप्लाई से जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड नहीं होती, नॉर्मल फॉर्म में होती है। यानी घरों में जो अगर गैस आती है वो नेचुरल गैस है। जब वही गैस कंप्रेस होकर सिलेंडर्स में बंद होकर डलती है गाड़ियों में, तब वो सीएनजी बन जाती है। लेकिन नेचुरल गैस से हटकर हमारे पास गैसेस में जो जब हम इस तरह से क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन भी निकलती हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिक्सचर होता है वो एलपीजी कहलाता है। और जो यूजुअली ब्यूटेन होती है वो अकेली लाइटर्स में यूज की जाती है, सिगरेट लाइटर्स जो हम कॉमनली देखते हैं। अगर से हम सीएनजी घरों में इस्तेमाल करें तो क्या होगा? बेटा सीएनजी कंप्रेस्ड गैस है, और कंप्रेस्ड गैस के साथ सेफ्टी इश्यूज आते हैं। घरों में बहुत सारी जगहों पे सीएनजी भी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो ठीक नहीं है। घरों में सीएनजी इस्तेमाल करना बेसिकली कुकिंग पर्पस के लिए होता है, और वो जो एनवायरनमेंट होता है वो ऑलरेडी एक हीटेड अप एनवायरनमेंट होता है। हीटेड अप एनवायरनमेंट में कंप्रेस्ड गैस को यूज करना तो खास सेफ नहीं है। अगर सेफ है भी तो दुनिया के हिसाब से सेफ है, क्योंकि दुनिया जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करती है। व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, पाकिस्तानीज आर द मोस्ट, लेट मी टेल यू, मोस्ट अनकेयरिंग सॉर्ट ऑफ पीपल। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल का तो ख्याल ही नहीं करते। अव्वल तो ये किसी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं करते, सेफ्टी प्रोटोकॉल को कर ये लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। और आपने कोविड-19 में इनका मास्क की तरफ एटीट्यूड देख रखा है। मास्क लगाने का अगर आप किसी को कह देते तो वो लड़ना शुरू होता है, ऐसे जैसे पत्नी आपने उसके गुनाह करने के लिए। तो अगर ये इन्होंने सिंपल नेचुरल गैस की बजाय कंप्रेस्ड फॉर्म में सिलेंडर्स में सीएनजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी घरों के लिए, ठीक है, तो फिर ये कोई ना कोई प्रॉब्लम करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, मूविंग ऑन। बायोफ्यूल्स, हम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखते हैं फ्यूल जो कि एथनॉल पे बेस करता है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल जैसे कि रेपसीड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, लिंसीड ऑयल, ये तमाम ऑयल जैसे हैं वो भी यूज होते हैं। ये प्लांट ऑयल्स हैं। ये डीजल फ्यूल के लिए इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं ताकि कार्स में ये यूज किए जा सकें। वेल, फ्यूचर यूज इन फ्यूल्स का डिपेंड करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स ग्रो करती हैं और उनके पास अपने रिजर्वॉयर्स पेट्रोलियम के नहीं हैं। कुछ के अंदर ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है कि लैंड को अगर हम ऐसी क्रॉप्स के लिए यूज करेंगे जो फ्यूल दे सकती हो, तो वो क्रॉप्स जो खाना दे सकती होंगी वो कहाँ जाएंगी। मतलब एक ही लैंड है, या तो आप उस पर व्हीट ग्रो करके, राइस ग्रो करके या ग्रीन्स ग्रो करके अपने फूड की टारगेट को पूरा कर सकते हैं, या फिर आप उससे अपना कार फ्यूल बना सकते हैं। कार फ्यूल व्हेन इट कम्स इन कंपैरिजन विद फूड बिकम्स अ लग्जरी, ठीक है। फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, कार फ्यूल एक बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, आप खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, और दुनिया अभी भी इस पर काफी बहस में लगी हुई है। जो कंट्रीज, जो कंपनीज रिच होना चाहते हैं क्विकली एंड अर्ली, वो इस बात के हक में हैं, लेकिन वो कंट्रीज जिनके अंदर फूड प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, वो कतई इससे रिप्लेस करने के हक में नहीं है।
या जिनके पास लैंड बहुत एक स्पेसिफिक अमाउंट में, जिनके पास ग्रेटर एरिया, कंट्री एरिया नहीं है, ठीक है। सो ये फैक्ट है जो डाइवर्ट करता है फार्मलैंड को फूड प्रोडक्शन से फ्यूल प्रोडक्शन की तरफ। कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज होगा फूड अवेलेबिलिटी में, जिसकी वजह से प्राइसेस फूड की बढ़ जाएंगी, ठीक है। और ये जो है ये इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसी वजह से एथनॉल को एक्सप्लोर किया गया फ्यूल के लिए। इसके अलावा सॉडस्ट जो होता है सॉ मिल से, उसे भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे कंसिडर किया गया। देखिए जो सॉडस्ट वाली जगह होती है जहाँ पे लकड़ी को हम जो ना कट कर रहे होते हैं, सॉ कहते हैं उस चीज को, उस मशीन को जो लकड़ी को कट करती है, और लकड़ी को कट करने में जो छोटे छोटे लकड़ी के पार्टिकल्स गिरते हैं उसे सॉडस्ट कहते हैं। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको गाड़ी, ये एक्चुअली सॉडस्ट हैंडल कर रही है, दिस इज नॉट सैंड। ये सारे लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस हैं जो सॉइंग ऑफ वुड से आए हुए हैं। और ये एक बड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम एथनॉल या बायोफ्यूल इससे बना सकते हो, ठीक है। सॉडस्ट मूवमेंट फेंक दी जाती है, जाया कर दी जाती है, उसे जाया करने की वजह अगर आप उससे फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये ठीक है, बजाय कि आप अपने खाने को फ्यूल में कन्वर्ट करें। अगर आप अपने वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छी बात है। और पूरी दुनिया इस बात पे एग्री है कि बजाय कि अपना खाना आप इस पर्पज के लिए इस्तेमाल करें, आप वेस्ट इस पर्पज के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं। उसी तरह से वेजिटेबल ऑयल जैसे क्रॉप से, यहाँ पर रेप लिखा हुआ है ना, गलती से रेप सीड होना चाहिए, ठीक है। इट्स अ बिग ब्लंडरस मिस्टेक, इट्स एक्चुअली रेप सीड, ठीक है। सनफ्लावर, इसे हम फ्यूल्स के तौर पर डेवलप करें कैसे, रिसाइकल कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सके। रिसाइकल कुकिंग ऑयल क्या है, ठीक है। रहीमा खान में रहने वाले बच्चे काफी फेमिलियर होंगे कि हमारे पास जलंधर पंजाब स्वीट मार्ट, सजावल, हुसैनी, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ के समोसे बड़े मशहूर हैं। और अगर जाएं तो आपने उन्होंने आपके सामने एक बहुत बड़ा यूटेंसिल रखा होता है जिसे उन्होंने कुकिंग ऑयल से फिल किया होता है, और उसमें उसमें जो है ना वो आपके लिए वो जो समोसाज होते हैं वो फ्राई हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें मल्टीपल टाइम्स एक कुकिंग ऑयल में समोसाज को फ्राई किया जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता कलर में डार्क हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो कंजम्पशन के काबिल नहीं रहता, और उसे फिर भी कंज्यूम किया जाए तो वो हार्ट डिजीजेस देता है। साइंस अब इस बात पे पहुंच चुकी हुई है कि कुकिंग ऑयल एक तो बहुत अच्छी चीज नहीं है आपके लिए, इसे बड़ी एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। फ्राइड मटेरियल्स भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फास्ट फूड एंड दिस गेट्स यू सिक एट द लेटर एज, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल को आप ट्वाइस मैक्सिमम थ्राइस यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स भी नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद उसे रिसाइकलिंग के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर हम इसकी घरों से अच्छी रिसाइकलिंग कर सकते हों और इसे कंज्यूम करने के बजाय हम इसे रिसाइकिल कर ले सकते हैं एज अ कार फ्यूल, तो क्यों नहीं। आप 1 से 2 मरतबा अपना खाना फ्राई करें और उसके बाद उस कुकिंग ऑयल को रिसाइकिल कर लें अपने कार फ्यूल के तौर पे, तो बहुत अच्छी बात है। बजाय कि आप उसे वेस्ट करें, क्योंकि हम उसे वेस्ट करने के आती है, क्यों नहीं, ठीक। इसी तरह से बायोडीजल कंटेन करता है ऐसे एस्टर्स जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाए होते हैं, इसमें रेपसीड या एनिमल फैट्स भी शामिल हैं, इन्हें भी बायोडीजल के तौर पे यूज किया जा सकता है। कंटिन्यूअल ग्रोथ न्यू ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की जो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से फोटोसिंथेसिस में, इसका मतलब है कि बायोडीजल कंट्रीब्यूट करेगा लेस टू ग्लोबल वार्मिंग देन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक प्लांट बेस्ड क्रॉप को जब हम डीजल में इस्तेमाल करेंगे और वो बर्न करके जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, उसी साल में उसी प्लांट को दोबारा रिप्रोड्यूस कराते हुए उतना ही फोटोसिंथेसिस उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फॉसिल फ्यूल्स ने पूरे अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज करके हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले गए हैं, पूरी अर्थ हीट अप हो गई है। इससे बहुत बेहतर है कि ऐसे फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाएं जो फोटोसिंथेसिस बेस्ड सोर्स से आते हो, ठीक है, और वो आपके ईटिंग मटेरियल में भी डायरेक्टली यूज ना होते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट या कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर प्लेनेट वो काफी कम हो जाएगा। मोटर मैन्युफैक्चरर्स ऐसी कार्स डेवलप कर रहे हैं जो नए फ्यूल्स के लिए अडैप्टेड इंजन्स रखते हैं। अब बहुत कॉमन हो गया है, अब आपको हाइब्रिड इंजन्स बहुत ज्यादा इजीली मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। इनफैक्ट मार्केट में हाइब्रिड इंजन्स जो ना प्रेफर किए जाते हैं। अब मार्केट में जो हाइब्रिड इंजन्स इस वक्त वर्क कर रहे हैं वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार रनिंग के लिए हैं। इसके अलावा सोलर कार्स या विंड पावर्ड कार्स या अल्टरनेटिव फ्यूल ट्रांसपोर्ट फ्यूल कार्स वो भी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं इन द कमिंग टाइम, ठीक।
एथनॉल और हाइड्रोजन पावर्ड कार्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में आएंगी, हम उन्हें डिटेल में वहां पर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक या सोलर पावर्ड कार्स भी कंसिडर की जा रही हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू गैसोलीन। हाइब्रिड कार्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। और वेस्ट ऑफ यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल चाइना, कनाडा और ऐसे कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने पोल्ट्री वेस्ट को एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और चाइना कंसिडर कर रहा है इवन ह्यूमन वेस्ट को एनर्जी सोर्स के तौर पे कंसिडर करने के लिए, ठीक। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बजाय कि हम अपने खाने के सामान को अपने कार फ्यूल के तौर पे यूज करें, ये बहुत बेहतर है कि हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को, लकड़ी का वेस्ट हो, प्लांट का वेस्ट हो, फूड का वेस्ट हो, किसी भी तरह के वेस्ट को यूज कर लें इस पर्पज के लिए। बायोगैस पर आते हैं। मीथेन गैस हम बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में बन सकती है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं किसी भी लिविंग मटेरियल को मीथेन के अंदर, ये हम यूज करते हैं। पाकिस्तान में बायोगैस जनरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एनिमल वेस्ट जितना होता है, काव वेस्ट या लाइफ स्टॉक का वेस्ट होता है, उससे मीथेन प्रोड्यूस की जाती है। कैसे? हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मेटल लेते हैं, जियोलॉजिकल कंडीशंस में उससे नेचुरल गैस प्रोड्यूस कराते हैं। मीथेन एक्यूमुलेट होती है कोल माइंस में जहाँ पे एक्सप्लोजन होते हैं। हमने इस प्रोसेस से लर्न किया कि हम मीथेन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं बायोगैस के तौर पे। मार्श गैस जो कि बबल अप होती है स्टैग्नेंट वाटर्स ऑफ मार्शेस से, स्वैम्प से, राइस की पैडी फील्ड से, ये भी मीथेन है। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि मीथेन जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनती है। हमने ये नोटिस किया कि मीथेन जो इस तरीके से बनती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट या अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो क्यों ना वो मीथेन हम अपने पर्पस के लिए यूज कर दें, बजाय कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाए और अर्थ को हीट अप करे। हम ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोमास से आने वाला जितना डिके है जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में एनारोबिक होता है, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में बायोमास डाइजेस्टर्स जो हैं वो रूरल या विलेज एरियाज के अंदर मौजूद हैं। उससे मीथेन जो प्रोड्यूस होती है वो हीटिंग, कुकिंग और सॉलिड रेजिड्यू के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकती है। बहुत अच्छी चीज है। अब ये काम पाकिस्तान में कॉमन चल रहा है। पंजाब के अंदर बहुत सारे, हमारे पास हंड्रेड्स की काउंट में पंजाब के अंदर इस वक्त बायोगैस जो ना प्लांट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, डिपॉजिट होता है लैंडफिल साइट्स में। बायोगैस जो रबिश डिकेज से बनती है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं लोकल फ्यूल के तौर पे। तो बजाय कि वही सारी मीथेन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए और अर्थ को हीट अप करे, बहुत अच्छी चीज ये है कि हम उसे अपने एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करें। एग्जाम्पल दी हुई है मर्सीसाइड यूके में, जहाँ पे बायोगैस यूज होती है ओवंस को हीट करने के लिए, एक कैडबरीज बिस्किट फैक्ट्री के अंदर, और वो एक रिसाइकलेबल गैस को इस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा टोयोटा प्रियस का उन्होंने हाइब्रिड गैस इलेक्ट्रिक कार इंजन दिया हुआ है लो इमिशंस के साथ, जो कि पेट्रोल पे और ऑनबोर्ड कंप्यूटर स्विचेस पे जब पेट्रोल लो हो जाए और वो बैटरी पे वर्क करना शुरू हो जाए, वो भी हमने साथ रखा हुआ है। तो अब ऐसी कार्स बहुत कॉमन हो गई हैं। हाइब्रिड कार्स आपको रहीना खान में भी बड़ी कॉमनली नजर आएंगी। और हमने ये लर्न कर लिया कि किस तरह हमने अपनी फ्यूल कंजम्पशन को और कम करना है और अल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज करना है। सो दैट्स ऑल।